ओके, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. Okay, beta. Yes, now you take out your book. Now class, we know today is your science, not SST. Do you have your science book? Yes, teacher. Okay, so Yes, because teacher. first we will complete about this chapter, then we will start our SST. Okay. So yes, you take out your book and see the page number 142. Oh. Abdullah, you were present on yesterday? No, miss. Okay. This is your first class. Yes. Okay, okay. Okay. Okay, yes, class. Have you take out your book? Yes, teacher. Okay, see the page number 142. Yesterday we have started to discuss about the hydraulic machine. Do you remember? Yes. Okay. Yes, very few students are here. Where is the other students? No. Come again. Okay, Abdullah again come. Yes, class yesterday we have discussed. We use the hydraulic pressure, okay, in the hydraulic machine, and when we use the hydraulic pressure in the hydraulic machine, so we use this pressure and the force was multiplied. Okay, you know, we have discussed how the pressure of the liquid is produced. Why the pressure produced from the liquid? I have given the two reasons. Do you remember these two reasons? Why we use liquid for producing the pressure in the hydraulic machine? This class, you all forget. You see page number 142, two reasons are here. You see 1 and 2. Have you seen? Yes, teacher. Okay. So now you see why we use the liquid in for producing the hydraulic pressure in hydraulic machine, because the liquid molecules are very close to each other and liquid are not compressed easily. Okay, because of this, why? Because their molecules are very close to each other, and if you produce pressure, okay, on it, so this pressure is transmitted throughout the liquid. ठीक है, कल हमने ये बात बताई थी आपको कि अगर हम जो है वो लिक्विड यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक मशीन में, तो क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए कि हाइड्रोलिक मशीन जो होती है उसमें हाइड्रोलिक प्रेशर के लिए हम लिक्विड यूज़ करते हैं. लिक्विड के जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, इसलिए इजीली लिक्विड कंप्रेस नहीं होता. ओके, इफ़ यू ट्राई टू कंप्रेस इट, सो इट ट्रांसमिट दिस प्रेशर टू ऑल द लिक्विड. अगर हम इसको जो है वो कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, इस पर जो है वो प्रेशर जो है एग्जर्ट करते हैं, दिस प्रेशर इज ट्रांसमिट थ्रू आउट द लिक्विड. ये प्रेशर जो है पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट हो जाता है. इसकी एग्जांपल कल आपको ये बताई थी मैंने, आपको याद हो. ओके, वेयर वी अप्लाइड द वी टेक दिस हाइड्रोलिक जैक. ये आपका हाइड्रोलिक जैक है. दिस टाइप ऑफ हाइड्रोलिक जैक वी यूज इन द हाइड्रोलिक मशीन. ठीक है, हम हाइड्रोलिक मशीन में इस तरह का एक हाइड्रोलिक जैक जो है वो यूज करते हैं. ठीक है. Okay, so this in this hydraulic jack, one cylinder is narrow and one is very wide cylinder. Okay,
when we apply the force or exert the pressure in the narrow cylinder. So this pressure which we exert on the liquid is transmit whole liquid, okay, and this pressure is applied on the wide cylinder, and it produce the output force, and this output force which apply on the piston, which is used for the for bearing the load, okay. So you see this, okay. Yes class. Now क्लास यू लिसन, आपको ये बात समझ में आ रही है कि हमने ये बात डिस्कस की थी कि व्हेन वी अप्लाई द एफर्ट, ओके, सो इन द हाइड्रोलिक जैक, so this force or this pressure is multiplied the force, okay, and this force we use for taking a weight, or we also use this hydraulic pressure in the hydraulic machines or excavator. This excavator is used to dig the grounds and lift the earth out of the holes, okay. Just a minute. Some okay class. So yesterday we have discussed this, okay. Please try to understand it, okay. If you don't understand, so you don't do the numerical or the problem, okay, which are present in this test yourself, ठीक है। ये कल मैं समझाया था, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको टेस्ट योरसेल्फ में जो एक आपको एग्जांपल करनी थी वो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक अस्सलाम है। वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। इस yes, yesterday we have started page number 142. So yes, all of you take out page 142. We are we were discussing about the hydraulic machine. Do you remember? Yes. Okay. So now you see we have started page number 142, the second paragraph, when we apply the brake, okay. When we apply the pressure on the brake pedal, okay, so for this purpose we press this brake pedal, okay. So in this brake pedal we have the cylinder, this cylinder having the fluid, okay. So this brake pressure produce the pressure in the liquid, and this liquid exert or transmit the pressure to the next cylinder, ठीक है। नेक्स्ट सिलेंडर पे जो है वो अपना प्रेशर ट्रांसमिट कर देती है, एंड दिस प्रेशर start to break or slow down the car or the any other automobiles, okay. So you see this second picture which are present on page number 142. Page number 142 पे आपको एक second picture नजर आ रही है। आप इसमें देखिए कि we use brake pedal, okay, when we use brake pedal के साथ आप देखिए यहाँ पे आपको जो है वो एक पिस्टन नजर आ रहा है। ये पिस्टन जो है वो बेसिकली अप्लाई हो रहा है लिक्विड के ऊपर। ये पिस्टन जो है वो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है लिक्विड पे, और लिक्विड ये प्रेशर जो है इस जो है वो लिक्विड प्रेशर को ट्रांसमिट कर रहा है दूसरे सिलेंडर तक, और दूसरा सिलेंडर कहाँ पर है, आपके व्हील के साथ है, ओके। सो दिस ब्रेक पैडल produce the pressure on the liquid, and liquid transmit the pressure to the next cylinder, and this next cylinder is near the wheel and is try to stop their wheel, okay, and your car is stop to brake, ठीक है। आपकी कार जो है वो ब्रेक होना शुरू होती है, okay. So yesterday we have discussed this, now you understand this, आप लोगों को समझ में आ रही है हर चीज, okay। Yes class, now you understand this? Yes, Yes, teacher. teacher. ये yesterday हमने ये चीजें डिस्कस की थी, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है इसमें, हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक जैक या इस ब्रेक पैडल में? नाउ यू अंडरस्टैंड बेटा? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, Okay. teacher. So now did you know, and test yourself, okay? Yes. Who read did you know? Ahmed Ansari. Teacher can. अच्छा आप एक मिनट, अंसारी को पढ़ने थे, आपको फिर बाद में नेक्स्ट टॉपिक रीड करवाती हूँ, ठीक है आपको। यस अहमद अंसारी, you read, did you know? The power generated by the braking system
of a family car is greater than that produced by the engines of most cars on the road. तो समझ में आया अहमद, क्या पढ़ा आपने? बताएंगे कुछ? नहीं टीचर. नहीं आया समझ में? अच्छा, हु वांट टू एक्सप्लेन दिस? कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको? यस एनीबॉडी? जी, अब्दुल्ला, यू वांट टू एक्सप्लेन? Very easy with it. The power generated by that. Okay, when you use this, you see this picture, last picture. You apply the force on the braking pedal. Okay, so they tell the power which are generated from the braking system of the family car. Okay, is greater. You know the engine is also produce a braking power. Okay, you also use the braking oil in the engine. Okay, so this engine also produce the braking power, but this braking power or braking force is less than the force which you use on the braking pedal. ठीक है, एक जो है वो ब्रेकिंग फोर्स जो है वो आपके इंजन में भी होती है, कार के इंजन में, जो कि वो रोड पे लगा रहा होता है। ठीक है, लेकिन वो जो पावर है वो उस पावर से कम है जो कि आप ब्रेकिंग पेडल पे लगाते हैं। ठीक है, कार को स्टॉप करने के लिए। ओके, सो इट मीन्स द हाइड्रोलिक प्रेशर is very important because it used to produce more force, and force are multiplied by the hydraulic pressure. जो हाइड्रोलिक प्रेशर है फोर्स को मल्टीप्लाई करता है, बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ये कि आपको आपके ब्रेकिंग पैडल जो है, जहाँ आप कार में जो ब्रेक लगाते हैं, तो वो ब्रेक की जो फोर्स होती है वो भी लिक्विड के थ्रू जो है वो एग्जर्ट होती है, और आपकी कार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रुक जाती है। ठीक है, इसके अलावा ब्रेकिंग ऑयल और जो है वो जो आपके इंजन में यूज होता है वो भी उसको ब्रेकिंग में हेल्प करता है, लेकिन ज़्यादा फोर्स होती है वो आपकी अप्लाई होती है इस पर, जो कि आपने लिक्विड पे एग्जर्ट की है। का मतलब है कि हाइड्रोलिक प्रेशर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रेकिंग सिस्टम में भी, और आपकी जो है वो हाइड्रोलिक मशीन्स के अंदर भी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको फर्स्ट पिक्चर दी थी पेज 142 पे स्केवेटर की। ठीक है, यहाँ पे भी जो है वो स्केवेटर के अंदर जो है वो हम हाइड्रोलिक प्रेशर यूज कर रहे थे, ताकि जो है वो हम उस ग्राउंड पर जो है डिगिंग कर सकें और ग्राउंड से जो है वो अर्थ को लिफ्ट आउट कर सकें होल से। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड दिस। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? If you don't Yes, understand, teacher. if you don't Yes, understand, teacher. so you ask. You all understand? Abdullah, Abdullah. Yes, miss. Okay, okay. So now we start test set. Yes. Okay, now I started. The question number 1: why are liquid difficult to compress? Okay, so you come on page number 142. See the point number 1. Okay, this point number 1 is the answer of question number 1. Okay, liquid are very difficult to compress because their particles are very close together. Okay, you got it, the answer? Yes, teacher. Okay. Now the question number 2: explain the difference between an input cylinder and an output cylinder in a hydraulic jack. Okay, this answer is after the point number 2, the paragraph. Okay, in this paragraph from first line, a simple hydraulic jack used to its heavy load pressure on the narrow cylinder is transmitted by the oil to white piston. ठीक है, बनी सॉरी वाइट piston इससे और आगे तक. It produces an output force which is larger than the input force. Teacher, can you please repeat it? Okay. You see the paragraph after the point number 2. Okay. So in this point number 2, after the point number 2 paragraph, you write from the first paragraph, first line. यहाँ लिखा हुआ the diagram shows. यहाँ से नहीं लिखिएगा, इसके आगे से लिखिएगा a simple hydraulic jack. ये मिल गया आप लोगों को? A simple hydraulic jack. Yes. Yes. यहाँ से, और in the last line, then in the input force. Okay. Then Okay, in teacher. input force. Okay, this is the answer of the question number 2. Now the question number 3. Explain why pipes in hydraulic system have thick walls. Okay, so you write the answer from the question. Okay, you leave explain why, right from then.
पाइप्स इन हाइड्रोलिक सिस्टम हैव थिक वॉल्स. ओके, इसके आगे लिखिए फॉर बेयरिंग प्रेशर. फॉर बेयरिंग प्रेशर. Yes, for bearing pressure. Yes, have you right? Yes, teacher. Teacher, can you repeat the answer? Yes. Okay, beta. Question number 3 answer in questions. Okay, you write from question. You write pipes in hydraulic system. यहाँ से लिखिएगा. Explain why छोड़ दीजिए. इसके आगे से लिखना शुरू कीजिएगा. Pipe in hydraulic system. ठीक है. Have thick wall. इसके आगे से इतना लिखिए. For bearing pressure. थिक वॉल जो होता है इन हाइड्रोलिक जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, इनमें थिक वॉल क्यों यूज होती है? ताकि जो प्रेशर आप एग्जर्ट कर रहे हैं वो बेयर कर सके प्रेशर. ठीक है, तो प्रेशर से आपकी जो पाइप है वो फट सकती है. ठीक है, सो यू राइट इट फॉर बेयरिंग प्रेशर. ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड. Yes. Okay. Now the question number 4. Explain why a hydraulic jack is a good example of a force multiplier. Okay. Again come on page number 142. Same paragraph of the question number 2 answer. जहाँ से आपने question number 2 answer लिखा था उसी पैराग्राफ पे आ जाइए. उसी पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है. अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा सा आपको जो है क्वेश्चन से लेना पड़ेगा, फिर वहां से लिखेंगे. ठीक है, पहले क्वेश्चन से ले लीजिए. क्वेश्चन से ले लीजिए. एक्सप्लेन वाई हटा दीजिएगा, वहां से लिखिएगा अ हाइड्रोलिक जैक इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ फोर्स मल्टीप्लायर. ठीक है, यहाँ तक आपने पूरा क्वेश्चन से ले लिया. उसके आगे लिखिए बिकॉज. क्वेश्चन के आगे लिखिए बिकॉज. ठीक है, नाउ यू राइट अगेन दिस पैराग्राफ. ठीक है, जिस पैराग्राफ से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखा था उसी पैराग्राफ पे वापस आइए. ठीक है, उसी पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है it produces an output force which is larger than the input force. The jack act as a force multiplier. Yes, got it the answer beta? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. अब अलीजा अभी आई है, इतनी लेट. ओके, चलेगा अलीजा को. अलीजा, you come very late beta. We are doing the test yourself of page number 143. Okay, so you take out page number 143. We have done question 4, 1 2 3 4. Okay, now we start question number 5. ठीक है, फिर आपको जो कुछ रह गया फिर हम बाद में बताते हैं. ठीक है, या फिर आप अपने कोलीग से ले लीजिएगा. Okay, now we start question number 5. Suggest why it can be very dangerous if air gets into the hydraulic braking system of a car. जी, अब आप लोग बताइए आपका क्या ख्याल है. मैंने कहा है कि क्या रीज़न हो सकता है कि अगर जो है वो आपके हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर अगर गैस आ जाए या प्रेशर एयर आ जाए तो ये कैसे जो है आपका ख्याल है कि ये डेंजरस हो सकता है. प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ज़्यादा हो जाएगा. सोचे सोचे और सोचे और कोई बताए. और भी आप भी सोचे. और नाउ क्लास डू यू रिमेम्बर वी हैव डिस्कस द प्रेशर इन गैसेस. हमने प्रेशर गैसेस भी पढ़ा था. हमने क्या पढ़ा था कि जो गैसेस के ऊपर जो प्रेशर इफेक्ट करता है, जब हम प्रेशर गैसेस पे प्रेशर लगाते हैं तो गैसेस जो है कंप्रेस हो जाती हैं. ठीक है ना, क्यों कंप्रेस हो जाती है? बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, तो गैसेस तो इजीली कंप्रेस हो जाती हैं, इसलिए हम गैसेस को यूज़ नहीं कर सकते प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि जब इतना प्रेशर डालेंगे गैसेस उतनी कंप्रेस हो जाएंगी, तो प्रेशर जो है वो आगे एक्सर्ट नहीं करेंगे वो. ठीक है, बट यू नो द लिक्विड इज नॉट इजीली कंप्रेस. लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते. ठीक है ना, तो अब लिक्विड आपको आप इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको हाइड्रोलिक मशीन में या में यूज़ करते हैं, क्योंकि लिक्विड जो है तो प्रेशर जो है वो बेयर नहीं करता, और जैसे हम प्रेशर डालते हैं प्रेशर को आगे जो है वो ट्रांसमिट कर देता है. ठीक है, सो नाउ यू अंडरस्टैंड. आप लोग आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? यस टीचर. ओके, Yes, teacher. इसी वजह से जो है वो एयर जो अगर इसमें आ जाएगी तो एयर क्या करेगी, प्रेशर को आगे ट्रांसमिट नहीं होने देगी. ओके, तो इट्स डेंजरस. अब प्रेशर आपका अप्लाई नहीं होगा तो इसका मतलब आपका ब्रेक जो है वो काम नहीं करेगा, फिर ब्रेकिंग सिस्टम आपका खराब हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि बीच में अगर एयर आ जाएगी
लिक्विड तो प्रेशर पूरा ट्रांसमिट कर रहा है ना, एक साइड से दूसरी साइड पे पूरा प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है। जैसे आपको यहाँ पे 2 सिलेंडर्स दिखाए गए, एक साइड से हम प्रेशर अप्लाई किया, दूसरी साइड तक तो प्रेशर ट्रांसमिट होता है। लेकिन अगर बीच में एयर आए तो एयर तो कंप्रेस हो जाती है, तो एयर तो आसानी से कंप्रेस हो जाएगी, तो क्या होगा कि वो प्रेशर को ट्रांसमिट नहीं करेगी। ठीक है, इसीलिए जो है वो एयर का जो है वो ब्रेकिंग सिस्टम में आना जो है वो डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो सिंपली आप आंसर जो है वो क्वेश्चन से लिखेंगे। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन से लिखिए, इट कैन बी वेरी डेंजरस इफ एयर गेट इनटू द हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ अ कार। ठीक है, यहाँ तक पूरा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर लिखिए बिकॉज ब्रेक सिस्टम not working properly, not work properly, because braking system not work properly, because brake system not work properly. Yes, have you done? Yes. Okay, Yes, teacher. okay beta. Yes, teacher. So now see question number 6. In the diagram, alongside the two syringes and the tube connecting them are filled with a fluid. Calculate the force on the piston of the wide syringe. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है इसी टेस्ट योरसेल्फ में। ठीक है, इनका इसकी दो साइड पे दो सिरिंज फिक्स की गई है। सिरिंज तो पता है ना वो सिरिंज क्या होती है? डू यू नो यू नो अबाउट द इंजेक्शन? जो इंजेक्शन लगते हैं देखा है? Yes. उसमें जो Yes, teacher. इंजेक्शन होता है बेसिकली सिरिंज कहलाती है। ठीक है, एक साइड पे आपको सिरिंज वैसी नजर आ भी रही होगी जो लेफ्ट हैंड पे है। राइट हैंड पे जो है आपको एक बड़ी सिरिंज इन्होंने लगा के दिखाई है। ठीक है, एक वाइड है, एक नैरो सिरिंज है। ठीक, अब इन्होंने दोनों जो सिरिंज है इनको जो है वो एक पाइप के जरिए से जो है वो एक ट्यूब के जरिए से कनेक्ट कर दिया। इन दिस ट्यूब दे हैव द लिक्विड, इसमें जो है वो लिक्विड है। अब एक साइड पे जो सिरिंज से उन्होंने फोर्स अप्लाई करी है, दिस फोर्स इज 6 न्यूटन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें एक एरो नजर आ रहा है आपको, जहाँ से जो है वो 6 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जा रही है फ्रॉम द नैरो सिरिंज। जो नैरो सिरिंज है, जो पतली सी सिरिंज है, उसके जरिए से जो है वो फोर्स अप्लाई की जा रही है 6 न्यूटन। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहे हैं कि आपको कैलकुलेट करना है फोर्स जो कि वाइड पिस्टन से आपके पास जो आपको आउटपुट में मिल रही है। ठीक है, जो आउटपुट फोर्स आपको मिल रही है वाइड पिस्टन से और वाइड सिरिंज से, आपको वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो हाउ यू कैलकुलेट इट? इसके लिए जो है जिस तरह से आपने पेज 142 पे आपके पास जो है वो हाइड्रोलिक जो जैक की जो है वो आपको डायग्राम दी गई है। एक साइड पे नैरो पिस्टन है, एक साइड पे वाइड पिस्टन है, सिलेंडर है, सॉरी। ओके, तो जिस तरह से हमने नैरो वाले पे जो है हमने प्रेशर अप्लाई किया था 12 न्यूटन का, तो हमने देखा था कि हमें वाइड जो हमारा सिलेंडर था उससे तकरीबन 120 न्यूटन फोर्स मिली थी। ठीक है, यहाँ पर जिस तरीके से मल्टीप्लाई किया गया, जहाँ पर जिस तरीके से जो फॉर्मूला यूज किया गया, फॉर्मूला सेम, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, उसी को जो है वो हमने फॉर्मूले को हमने चेंज किया था। यहाँ पे जो कुछ मौजूद है इसी को हमने यूज करना है। यहाँ पर कैसे यूज करेंगे देखिए, सबसे पहले जो है वो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें दी हुई है। उन्होंने आपको दिया हुआ है नैरो सिरिंज का एरिया, नैरो सिरिंज एरिया इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वाइड सिरिंज का एरिया भी आपको दिया हुआ आपको उन्होंने 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको जो है वो फोर्स आपको मालूम करनी है कि फोर्स जो है वो फोर्स से नहीं, फोर्स मतलब प्रेशर आपको मालूम करना है, कितना प्रेशर जो है वो आप एग्जर्ट कर रहे हैं। तो आपको जो है प्रेशर दोनों साइड पे मालूम करना पड़ेगा, ताकि आप जो है वो इजीली जो है वो उसको कर सकें, क्योंकि आपको यहाँ पर फोर्स मालूम करनी है वाइड पिस्टन वाइड सिरिंज की तरह। तो उससे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू टेक आउट द और कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द नैरो सिरिंज। नैरो सिरिंज के पहले प्रेशर कैलकुलेट करें। ठीक है, हाउ यू कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? प्रेशर कैलकुलेट करना है आपने। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? Force upon area. फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स कितनी दी हुई है नैरो सिरिंज पे? 6 Newton. 6 न्यूटन। गुड, वेरी गुड, 6 न्यूटन। ठीक है, और एरिया कितना है यहाँ पे? 2 centimeters 2 square. centimeter square. 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे हमें क्या करना है आपको पता है कुछ? आपको याद है कि हमारा एरिया हमेशा मीटर में होना चाहिए। ठीक है, हमने ये इससे पहले वाले जो इसमें भी किया था। ठीक है,
तो हमने जो है वो हमेशा अपना एरिया जो है वो हमेशा मीटर में होता है। अगर सेंटीमीटर में होगा तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। ठीक है, इससे पहले भी आई थिंक हमने कन्वर्ट किया था कहीं पे। ठीक है, मैं देखती हूँ कहाँ किया था कन्वर्ट, पर हमने इसको जो है वो कन्वर्ट किया था। हम कन्वर्ट कर चुके हैं अपने जो है वो पेज 138 के क्वेश्चन में, हमने जो है वो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। यू टेल मी हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर। यस क्लास, डू यू नो कितने होते हैं? हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर? 100. 100, यस 100, यस 100 सेंटीमीटर। ओके, 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है कि हमें 2 सेंटीमीटर को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। सो यू डिवाइडेड 2 सेंटीमीटर विद द 100। 2 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करें, देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। कर रहे हैं आप लोग? यू हैव योर नोटबुक? सबके पास 500. 500 आएगा। सोचिए सोचिए, आप जो है 2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई नहीं कर रहे बेटा, डिवाइड कर रहे हैं। Say 50. 50 टीचर 50 नहीं, एक सेकेंड, 2 डिवाइडेड बाय 100, 2 ऊपर आएगा 0.02 0.02, यस 0.02। 2 ऊपर आएगा, 100 नीचे आएगा। 2 डिवाइडेड बाय 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 नहीं है, 2 डिवाइडेड बाय 100। अंडरस्टैंड, समझ में आ रही है बात? 2 डिवाइडेड बाय 100, नॉट 100 डिवाइडेड बाय 2। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, लेकिन हमने 2 को 100 से डिवाइड करना है। 2 ऊपर आएगा, ठीक है, नीचे जो है आपका 100 है। सो आंसर इज 0.02। ठीक है, ये तो आ गया आपका एरिया जो कि आपने कन्वर्ट किया है। सही। अच्छा, यू नो हाउ यू डू दिस न्यूमेरिकल करना किस तरीके से, पता है ना आपको? डू यू प्रॉपरली, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, यूज द 4 हेडिंग्स, आपको उसी तरीके से आपको ये प्रॉपरली ये आपको न्यूमेरिकल करना है। अभी मैं आपको सिंपल करना बता रही, फिर आप अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको हेडिंग के साथ समझा दूंगी। ठीक है, अभी आपने ये निकाली, आपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया इसको, एरिया को। ओके, नाउ यू टेक आउट द प्रेशर। अब यहाँ पे जो वो जो नैरो सिरिंज है उसका प्रेशर मालूम कीजिए। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये तो पता है ना फॉर्मूला आपको। तो जब फोर्स अपॉन एरिया को करके बताइए क्या आ रहा है आंसर। यस टीचर फोर्स आपको पता है कितनी है यहाँ पे? 6. है। ठीक है, और आपका एरिया क्या हो गया? 0.02. 0.02। चलिए हम इसको डिवाइड करें, मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। यस एवरीबॉडी, सब कोशिश करें। 300 300, yes, 300 yes 300। Okay, so the 300 pascal is the pressure which are produced on the syringe 1। syringe 1 पे जो प्रेशर प्रोड्यूस हुआ है वो 300 पास्कल है। ठीक है, अब बेसिकली हमें जो कैलकुलेट करना है वो तो हमें उन्होंने कहा है कैलकुलेट करें फोर्स जो कि वाइट सिरिंज पे प्रोड्यूस हो रही है। अब वाइट सिरिंज के पास आइए। ठीक है, अब वाइट सिरिंज पे देखिए कि यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो एरिया गिवन है, ठीक है, फोर्स गिवन नहीं है, ना फोर्स है ना प्रेशर है। प्रेशर तो हम वो यूज करेंगे जो हमने नैरो सिरिंज का मालूम किया है। वो आपका जो फार्मूला था P इज इक्वल टू F अपॉन A। ठीक है, दिस फार्मूला नाउ इज चेंज। ओके, नाउ फार्मूला इज F इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा? P मल्टीप्लाई बाय A। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ये अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप अपनी जो है वो पेज 142 पे देखिए, आपको यहाँ पर इसी तरीके से समझाया गया है। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? अगर नहीं आ रहा तो मुझे बताइए, दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। टेल मी। यस ऑल स्टूडेंट, अमना, किसा, अली, हुजैफा, मुस्तफा, यूसरा, जिसको नहीं समझ बताते बेटा, किसको नहीं समझ में आ रहा? अब्दुल्ला, आपको आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, बताइए। यस टेल मी, आर यू अंडरस्टैंड और नॉट? यस हुजैफा, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बता दे, कोई मसला नहीं है, कोई आपको बाहर थोड़ी ना। अगर नहीं आ रहा तो दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बोलिए। हुजैफा, नहीं आ रहा है? यस टेल मी। अच्छा, बाकी सब टीचर? जी बेटा बोलिए। जो हमने अभी उसका नैरो सिरिंज का जो वो प्रेशर निकाला है वो मेरा नहीं आ रहा 300। आपका 300 नहीं आ रहा है? 6 को आप 0.02 से डिवाइड करना है।
आपको प्रॉब्लम हो रही है? 0.02 को 3 से नहीं करेंगे डिवाइड? 6 ऊपर आएगा और 0.02 नीचे आएगा। ठीक है, इसको जो है वो आपको सिंपल करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको बताया था ना, आप पॉइंट को जो है वो रिमूव कीजिए। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 600 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा। ठीक है, जब नीचे 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और 300 बन जाएगा। सिंपल सा आ रहा है समझ में? अभी आज आप उससे करिए, देखिए आप जो है वो यस टीचर। मुश्किल हो रही है ना, तो पॉइंट को हटा के आपको पता है पॉइंट को जब हम अच्छा, अब हो रिमूव, गया जैसे आपने बताया था। ठीक है ना, तो वहाँ 2 0 जब बढ़ जाएंगे तो 2 से आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, अब आपको यही प्रेशर जो है वो यहाँ यूज करना है, क्योंकि आपको फोर्स मालूम करनी है। आपके पास वाइट सिरिंज में सिर्फ एरिया दिया हुआ है, ना उन्होंने फोर्स दी है ना प्रेशर दिया है। टीचर नैरो सिरिंज का रिजल्ट कैसे लिखेंगे? नैरो सिरिंज का पूरा सेपरेटली आएगा, वाइट सिरिंज का अलग करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी आपने किया है ना, आप पहले वैसे ही डेटा बनाएंगे नैरो सिरिंज का, ऊपर लिखिए नैरो सिरिंज और फिर आप डेटा बनाइए उसका आप लिखेंगे 4-6 न्यूटन, एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा, फिर इसको चेंज करके लिखिएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने क्या मालूम करना, प्रेशर मालूम करना, इसका क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अच्छा, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मैं करवा देती हूँ। सब बताइए, करवाना तो आप लोग अपनी नोटबुक निकालिए, मैं आपको करवाती हूँ। फिर तो मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करती हूँ, आप लोग नोटबुक निकालिए जी। सबके पास नोटबुक है? यस टीचर। यस टीचर। चलिए, यस टीचर। बनवाऊँ, डेटा बनवाऊँ आप लोगों से? ऊपर लिखिए, पहले आप लोग लिखिए नैरो सिरिंज। ठीक है, नैरो सिरिंज लिख लिया आप लोगों ने? ठीक, अब नैरो सिरिंज लिखने के बाद यस टीचर। अब आप लोग लिखिए फोर्स इज इक्वल टू 6 न्यूटन। फोर्स कितनी है आपकी? 6 न्यूटन। मुस्तफा, yesterday you were present in the class? कल आप क्लास में थे? मैंने कल आपका अटेंडेंस नहीं लगाई, इसी पूछ रही हूँ। Yes, anybody know? मुस्तफा कल क्लास में थे या नहीं थे? यस मुस्तफा, जल्दी बता दें बेटा, 5 मिनट्स रह गए। अच्छा जी, इनकी चैट आ गई। ओके, जस्ट अ मिनट। नो, ओके, थैंक यू बेटा। हाँ, मैंने कल आपकी ना प्रेजेंट नहीं लगाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा था कि मुस्तफा थे या नहीं। ओके, अच्छा बेटा, आप लोगों ने लिख लिया, फोर्स लिख लिया, एरिया लिखा आपने? एरिया है आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस टीचर। उसको आप जो है वही इक्वल करके जो है वो चेंज करके दिखाइए, 2/100 लिखिए पहले, और फिर इसके आगे इसका आंसर लिखिए 0.02 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर लिखिए, फिर 2/100 लिखिए, फिर इक्वल करके लिखिएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको जो है वो मालूम क्या करना है, प्रेशर के आगे क्वेश्चन मार्क लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब आप फॉर्मूला लिखिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जल्दी जल्दी से करें, टाइम कम रह गया, मुझे सेकंड पार्ट करवाना है इसमें। यस, लिख लिया बेटा आप लोग? सोल्यूशन की हेडिंग डाल दी। अब सोल्यूशन में जल्दी से फटाफट लिखिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लिखिए, यानी कि 6/0.02 लिखिए, 6 डिवाइडेड बाय 0.02। ठीक है, इज इक्वल करके लिखिए 300 पास्कल। ठीक है, रिजल्ट की भी जगह छोड़ दीजिए, खुद लिख लीजिएगा। द प्रेशर ऑफ द सिरिंज, प्रेशर ऑन सिरिंज ए इज 300 पास्कल। ठीक है, क्योंकि हम सिरिंज बी शुरू करना जल्दी से, ये वाइट सिरिंज। ठीक है, टाइम कम रह गया। सर रिजल्ट रिपीट करेगा? रिजल्ट लिखिएगा, प्रेशर ऑन सिरिंज ए और या प्रेशर ऑन नैरो सिरिंज इज 300 पास्कल। प्रेशर ऑन नैरो सिरिंज ऑन is 300 Pascal. Yes, हमने you also do it बेटा। ठीक है, अब हम आपने कहाँ से आपने नहीं सुना? ठीक है,
ओके, मैं जो है वो कोशिश करूंगी इसकी रिकॉर्डिंग भेजूँ तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा बेटा, नाउ अब आप जो जल्दी से व्हाइट स्टेज लिखिए, बहुत कम टाइम रह गया, व्हाइट स्टेज का वो बना लीजिए, व्हाइट स्टेज का डेटा बनाइए, ठीक है। व्हाइट स्टेज पे लिखिए प्रेशर इज इक्वल टू 300 पास्कल। व्हाइट स्टेज पे जो प्रेशर है आपका वो 300 पास्कल है, ठीक है। एरिया है आपका, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है एरिया। इसको वैसे करिए, 8 सेंटीमीटर इज इक्वल, लिखिए 8 डिवाइडेड बाय 100, 8 डिवाइडेड बाय 100, 0.08 है। यस गुड, ठीक है। अब आपका एरिया क्या हो गया 0.08, ठीक है। उसी के बराबर में इज इक्वल करके लिखिए 0.08 मीटर स्क्वायर, 0.08 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जो हो गया एरिया हो गया। आपको मालूम क्या करना है, देखिए नीचे फोर्स, फोर्स के आगे लगाइए क्वेश्चन मार्क, फोर्स के आगे क्वेश्चन मार्क लगाएं, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप फॉर्मूला लिखिए जल्दी से, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है हमारा। फॉर्मूला जो है लिखिए F इज इक्वल टू, या फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है। अब सोल्यूशन में आप जो है दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि टाइम बिल्कुल ओवर हो गया, मैं खत्म नहीं करूंगी ना तो फिर वहां से वार्निंग आ जाती है हमारा, ठीक है। सिर्फ हाफ मिनट रह गए, मैं खत्म कर रही हूँ क्लास। आप लोग सोल्यूशन कर लेंगे ना इसका। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखना है फोर्स का, ठीक है। टीचर 24 है आंसर। यस 24 है, ओके। सो योर आंसर इज फोर्स इज 24 न्यूटन। आप लिख सकते हैं द फोर्स अप्लाई ऑन फोर्स, या क्या कह सकते हैं, आउटपुट फोर्स फ्रॉम द वाइट सिरिंज इज 24 न्यूटन, आउटपुट फोर्स फ्रॉम द वाइट सिरिंज इज 24 न्यूटन। ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास, टाइम इज ओवर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू।